Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today is 29th December 2021. Okay, so let's start our economic analysis on newspaper Financial Express, right? So in this lecture, the topic of discussion is some articles. So the first article, which is on page number first, that is SEBI tightens IPO process with slew of new norms, right? Guys, we will not discuss about IPO norms because these are not important from examination perspective, right? We will talk about functions of SEBI, because you can see this red line, protecting small investors, right? This is one of the function of SEBI. Okay, so you all know SEBI. SEBI is Securities and Exchange Board of India, that was initially constituted on 12th April 1988 as a non-statutory body. Okay, and it was given statutory status and powers through an ordinance on 30th January 1992 for dealing with all matters relating to safeguard the interest of investors and to regulate capital markets, the business of stock exchanges and other securities market, right? So guys, that's all about this article. So next article is on page number second, that is government caps turnover growth for textile PLI benefits. Okay, you all know guys, recently the center released the operational guidelines for the production linked incentive scheme for textile. Okay, this scheme is operational from 24th September 2021 to 31st March 2030. Okay, mainly it is focused on expanding man-made fabrics and technical textiles value chain. Okay, so what is this technical textile? We will talk about this technical textile later on. Okay, so in from this article, we will talk about production linked incentive scheme and its extension to textile, right, and technical textile. These three are the important points to discuss regarding this article. Okay, so before talking about these points, firstly we should understand the status of manufacturing sector. Okay, manufacturing sector is the component of industrial sector. Okay, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक कंपोनेंट है ना। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर उसमें बहुत सारी कंपोनेंट्स है, माइनिंग है, क्वेरिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो उनमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इसका एक कंपोनेंट है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टेक्सटाइल, जो टेक्सटाइल है वो भी एक पार्ट है, कंपोनेंट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, राइट। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो एक स्टेटस है वो आप कैसे चेक करोगे। एक तो आप इसका शेयर देख सकते हैं जीबीए में, है ना। दूसरा इसका शेयर देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट में। ओके, सो आई विल टेल यू द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीबीए एंड इन एम्प्लॉयमेंट with the help of economic survey 2020 to 21. Okay, so just wait, I will tell you, I will show you, right, I will show you page number 283. Here
From this figure 1 you can see share of industry and its component in GVA. ओके, तो जो ये ग्रे लाइन के जो बॉक्सेस है, ग्रे कलर के जो बॉक्सेस है, यहाँ से आप देख सकते हो कि जो ग्रे कलर का जो बॉक्स है वो डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा होगा आपको, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर है जीवीए में वो डिक्रीज होता जा रहा है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जीवीए में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर, राइट। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक कंपोनेंट है। इसके अलावा भी कंपोनेंट्स है, माइनिंग है, क्वेरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, कंस्ट्रक्शन है, राइट। ऑल दीज आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग इनमें से एक है, राइट। सो नाउ वी हैव टू सी शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट। ओके, so just wait, this is on page number 357. here यहाँ देखो जो 10.15 जो पैराग्राफ है इसमें इंडस्ट्री वाइज एस्टिमेट्स दिया है वर्कफोर्स पर, ठीक है, कि कौन से सेक्टर में कितना परसेंट, कितने परसेंट लोगों को कितने परसेंट लोग एम्प्लॉयड है किस किस सेक्टर से, ठीक है। जो वर्कफोर्स का 42.5% है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड, ठीक है। जो टोटल वर्कफोर्स है उसका 42.5% लोग कहाँ एम्प्लॉयड है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। और जो अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें टोटल वर्कफोर्स का सिर्फ 12.1% लोग काम करते हैं, ठीक है। तो जो अदर सेक्टर्स है इंडस्ट्रियल सेक्टर के ही कंपोनेंट है, ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट, उनमें 12.6% लोग काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल सकता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में भी शेयर बहुत कम है और जीवीए में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर बहुत कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर सेक्टर, राइट। तो इस यहाँ से आप यू कैन these figures are showing that manufacturing sector is underperforming sector, right. We are not satisfied this sector, right. jobs भी कम है तो उसकी वजह से जो सेक्टर है वो इम्प्रूव्ड भी नहीं है, प्रोडक्शन भी उतना ज़्यादा नहीं है। प्रोडक्शन नहीं है तो लोगों का नीड्स कैसे पूरा होगा, तो उनको अपने नीड्स को पूरा करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे लो जॉब्स है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए वी वांट टू प्रमोट आवर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, कि हमें दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड ना रहना पड़े इंपोर्ट के लिए, है ना। जो भी हमारी कंट्री की नीड्स है वो हम अपनी कंट्री में ही फुलफिल करें, है ना। इतना प्रोडक्शन करें कि हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्या पता फ्यूचर में कोई कंट्री हमें हमारी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट ही ना करे, मना कर दे कि हमें आपको एक्सपोर्ट नहीं करना है, तो हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे। तो इसलिए हमें अपनी कंट्री में प्रोडक्शन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, राइट। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट जॉब्स भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो इसी के लिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको ही प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम लेकर आती है। कौन सी स्कीम लेके आए हैं, PLI स्कीम लेके आए हैं, ठीक है। तो ये PLI स्कीम है क्या, ठीक है। और जो टेक्सटाइल सेक्टर है इस सेक्टर में PLI स्कीम को एक्सटेंड किया है, इसकी वजह से क्या होगा वो हम देखेंगे अब, है ना। तो देखो जो PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इससे क्या होगा, इससे
ये होगा कि जैसे जो हमारी कंट्री है, गवर्नमेंट है, वो ये कहती है जो अदर कंट्रीज की कंपनीज है, फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल अमेरिका में है, अमेरिका की कंपनी है, तो हम उस कंपनी को ये बोलेंगे कि आप हमारी कंट्री में आए, है ना, अपनी जो टेक्निक है टेक्निक को लेकर आए, ठीक है, और यहाँ पे अपना जो बिजनेस है उसको सेटअप करें, यहाँ पे आके एप्पल के फ़ोन बनाए, है ना। तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना बिजनेस सेट करेंगे, राइट, लेकिन लेबर अपनी कंट्री से ना लेके यहीं की जो लेबर है उनको यूज़ करेंगे, है ना। तो जब यहाँ के लेबर को यूज़ करेंगे तो यहाँ की हमारी कंट्री का जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो इंक्रीज़ होगा, है ना, क्योंकि अगर वो अपनी कंट्री से लेबर को लेके आएंगे तो उनके लिए खर्चा भी तो होगा, है ना। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो हमारी कंट्री ये बोलती है कि आप सिर्फ टेक्निक को लेके आए, है ना, हमारे लेबर को ही यूज़ करें, तो इससे एक साइड से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, दूसरी साइड से जो टेक्निकल एजुकेशन है वो भी इम्प्रूव होगा, है ना। तो अब देखो, एक तरफ से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, जो टेक्निक्स है वो भी आ रही है ना। तो इसकी वजह से एक तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा हमारी कंट्री में, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से हम इंपोर्ट्स कम करेंगे, है ना। इंपोर्ट्स जब कम करेंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से इंपोर्ट्स भी कम होंगे और जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। जो हमारा एक एम है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, वो भी पूरा होता हुआ नजर आएगा, है ना। तो और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी इम्प्रूव होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल इम्प्रूव होगा, राइट। तो ये सारे बेनिफिट्स है जो PLI स्कीम के एक्सटेंशन की वजह से होंगे, ठीक है। तो दैट इज अबाउट दिस आर्टिकल. So that's all for today. Thanks to all of you, right? So see you again with next lecture tomorrow.